ले चुके हैं, स्टार्ट ही नहीं किए हैं। मैं लाइव स्ट्रीम हो रहा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। Now, Jyoti ji is also there. Jyoti ji, Jyoti ji, please. Jyoti ji is also Hello, Vipin ji, can you hear me? Yes, yes. Jyoti ji, please start your video. Jyoti ji, please. Hello, Vipin ji, can you hear me? Yes, yes. Please start your video. Oh, shall we start? हाँ. You are not. Hello. हाँ, please start your video, Jyoti. Hello, am I audible? Please. With a... हाँ, you are audible and please start your video as you are not seeing in on the screen. Okay. हाँ, yes, I can hear you. Okay. Let's start. Yeah, please start your video. Now, without any delay, Hello. without any delay, I am hand over to Hello, am I Dr. audible? Jyoti Mala. You are audible and please start your video as you are not on the screen. Okay. Yes, I can hear you. Okay. Please, Jyoti ji, unmute yourself and I hand over session to you. You can. Without any delay. Start. Hello. Hello. Jyoti ji, you are audible. Please commence this session. Hello, am I audible? Yes, yes. Please commence this session. Okay. Now starting the Adar Abhinandan Abhar. Namaste and a very good afternoon. Respected Principal, Professor Indrajit Prasad Roy, our IQAC Coordinator, Dr. Vinod Kumar Jha, our IDC Convener, Professor Vinay Kumar, my colleagues, participants, and dear students. On behalf of Department of Philosophy, IQAC, and ANS College Bar Fraternity, I, Jyoti Mala, host of today's event, extend a warm welcome to one and all present here. It's a very exciting afternoon as from a long time, our participants of the poster making competition are desperate to confront the results. We all know well that we have gathered here to celebrate the International Day of Yoga. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जाता है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता का खुलासा करने वाला एक गहन विज्ञान है। दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण संप्रदायों में योग दर्शन का स्थान सर्वोपरि है। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है, योग चित्तवृत्ति निरोधक। योग हमारे पूरे जीवन शैली को आत्मसात करता है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। But due to some technical reasons, we didn't get able to organize this event on that particular day. We really apologize for this. हमारी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। फिर भी देर नहीं हुई है क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह चल रहा है। भारतीय परंपरा में कहा गया है, अतिथि देवो भव।
It's our tradition and culture. So, before we start our session formally, let me acknowledge the presence of our eminent guest of today, who is our jury also, Professor K.C. Vajpayee, Head, Department of Creative Arts, BIT Mishra, Patna. Sir, I would like to thank you for taking the time out from your heavy schedule. I'm also thankful to our principal, Professor Indrajit Prasad Roy, for his glorious presence and simultaneously requesting him to enlighten us with his kind words. Sir, please. Principal sir, unmute to yourself and please say some word. Principal sir. Principal sir, please unmute yourself. Yes. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. Okay. On the occasion of International Yoga Day on 21st June 2020, Department of Philosophy and IQSC jointly organized a poster competition on national level. This is a matter of great pleasure for NS College Bar that this type of event has been organized by IQSC coordinator Dr. Vinod Kumar Jha, coordinators Dr. Hina Rani, Assistant Professor, Department of Philosophy, Vipin Nautiyal, Assistant Professor, Department of Philosophy, Deputy Coordinator Jyoti Mala, Assistant Professor, Department of Philosophy, and from very busy schedule, Professor Krish Chandra Bajpayee, Head of the Department of Creative Arts, BIT Mishra, Patna. Sir, you have accepted our invitation on this webinar. You are a very scholar person because your participation in this type of organization at national and international level are known. You have been declared
Man of the Year 2006 by American Biographical Society. I thanks and grateful for your kind support to our college, all delegates and artists using the time of this COVID-19 period. They have created something. I have seen so many posters have been created, painted by our participants. I welcome all the registered participants, delegates who are joining us at this present time. I thank all, especially organizing committee coordinator Dr. Hina Rani, Vipin Nautiyal, Jyoti Mala, in the leadership of Professor Vinod Kumar Jha, Department of Political Science. Thanks to all, one and all, very good afternoon. Thanks, and I am grateful to all again. Thanks. Okay, sir. Thank you for your words. Now, Jyoti ji, again hand over to you. Jyoti ji, unmute yourself. Please. Okay, I think there is some technical problem. Jyoti ji is not in online. Now I am asked and request to my HOD to say some word and continue the session. Hello. Good afternoon to all of you. आज तक हम पोस्टर कॉम्पिटिशन की रिजल्ट अनाउंसमेंट और मैं चाहूँगी हमारे Okay. Ma'am, can I hand over it to our jury member? Okay. Now I am inviting to our jury member, Professor K.C. Bajpai. Sir ji, now I am hand over to you. Please, sir, unmute yourself and say some word on today's session. Sir, please, KC sir, unmute yourself. सबसे पहले आप सभी लोगों का सादर वंदन अभिनंदन। मैं प्रोफेसर केसी वाजपेयी, पंडित कृष्णचंद्र वाजपेयी, विशेष रूप से हेलो, अब मेरी आवाज जा रही है वहां तक? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो हेलो, इसके बाद अब उनको दे दिया है, कल तक किसी ने बताया नहीं, अब प्लीज सेशन में ना बोले। आवाज जा रही है? हेलो, अच्छा, आप अब वो बोलने लग गए, इसके बाद बुलवाते हैं, क्योंकि अभी ज्योति जी दिख नहीं रही, किसी की आवाज नहीं आ रही है। चलने दीजिए। चेक करके आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, फिर हम बोलते हैं। मुझे यहाँ आवाज नहीं आ रही, अब केसी सर के बाद दे देंगे, परेशान ना होइए, है ना।
आ रहा है ना। हेलो। 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 यस सर। फिर मेरी आवाज जा रही है तो फिर हम शुभारंभ करें, बोले। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। प्लीज कंटिन्यू। बिहार विशेष रूप से ऋषि कृषि मनीषी का प्रदेश यहाँ के कण कण में शांति और क्रांति के बीज पैदा होते हैं। विश्व योग दिवस में भी हमारे बिहार की विशेष रूप से भूमिका रही है। पतंजलि से लेकर के आचार्य श्री बाबा रामदेव तक सभी ने विश्व में योग के प्रचार और प्रसार के सार को उन्होंने समझाया, बताया। सर्वप्रथम योग पर कुछ बोलने के पूर्व सबसे पहले हम यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद राय जी के और साथ साथ उनकी पूरी टीम के हम आभारी हैं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया एवं ये अवसर प्रदान किया। राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रांतों की यशस्वी छात्र छात्राओं ने जो इसमें भाग लिया, उस युवा शक्ति को मेरा कोटिशय प्रणाम, वंदन, अभिनंदन और ढेर सारी उन्हें शुभकामनाएं। एएनएस कॉलेज बाढ़ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए उस कॉलेज का पूरा परिवार मैं उसका वंदन करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। सभी की विशिष्ट भूमिकाएं रही और सभी ने बहुत तन मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में जो योगदान किया है, उसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। विशेष रूप से मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र के नव निर्माण एवं समाज के समग्र विकास में सकारात्मक दिशा में युवा शक्ति का एक कदम का साथ वो संपूर्ण युवा शक्ति को शिक्षित, संगठित कर भारत के गौरवशाली इतिहास को बनाने में सहायक सिद्ध होता है। कुछ भी गड़बड़ होगा तब आप संभाल लेना, ठीक है? इसलिए मैंने और एक कदम का साथ, सिर्फ एक कदम का साथ, बारिश हो मेरा ऐसा मानना है कि बात मंजिलों की करते हैं, चलते कदम की नहीं। आपने एक कदम बढ़ाया है, आपको बधाई है, आपको बधाई है। फिर मैं झा सर और विनय सर को बोलने को इस मनसा वाचा कर्मणा आचार विचार व्यवहार के द्वारा संयम युक्त, अनुशासन युक्त एवं जागरूक स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और संपूर्ण विश्व के प्रति जो व्यक्ति जागरूक है, वही व्यक्ति तीन चीजों से युक्त होता है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, जल जंगल और जीव, ब्रह्मा विष्णु महेश एवं व्यावसायिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा। बिना आध्यात्मिक शिक्षा के जीवन में कुछ नहीं मिलता। हम कुछ भी कर लें, लेकिन संपूर्णता हमें तभी मिलेगी जब सही सोच, सही दृष्टि, सही प्रयास के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए पूरे भारतवर्ष की, सारे विश्व में जो नंबर ऑफ परसेंटेज है, वो युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हमारे भारतवर्ष में मौजूद है। इन्हें संगठित कर, शिक्षित कर, संघर्षशील बना करके और सारे विश्व में हमारी युवा शक्ति की भूमिका जो है वो विश्व के मानचित्र पे एक अपना नया इतिहास बनाएगी। और 145 करोड़ माँ भारती के सपूतों का वंदन, अभिनंदन करते हुए संयम पूर्वक जीवन, जैसा कि मैंने कहा कि आचार विचार व्यवहार से
अगर स्वस्थ तन है, स्वस्थ मन है, तो स्वस्थ विचार भी आएंगे। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो फिर हमारे विचार भी अस्वस्थ होंगे। इसलिए तन स्वस्थ होना, अगर हम स्वयं के प्रति जागरूक हैं, कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, तो उसका हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और संपूर्ण 24 घंटे कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में है, अगर वो सिर्फ खाली योगा ही करता है, सुबह से लेकर शाम तक योगपूर्ण जीवन जीता है, दूसरा कोई नैतिक दायित्व उसके ऊपर में नहीं है, तो गंगा जल में तुलसी दल मिला करके वो उस जल का व्यवहार कर सकता है, 24 घंटे योगासन कर सकता है और उसके ऊपर में प्रसार कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पारिवारिक पृष्ठभूमि में, सामाजिक पृष्ठभूमि में अलग अलग दायित्वों का निर्वाह करते हैं, 24 घंटे तक योग नहीं कर सकते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो वो भी अगर 24 घंटे में 10 मिनट का समय सिर्फ अपने लिए निकाले, सुबह या शाम, वो उनकी सुविधा के ऊपर में है, चलते फिरते भी वो योग कर सकते हैं। हम लोग गहरी सांसें नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी चीज। गहरी सांसें लेने वाले जितने भी दीर्घायु हुए हैं वो हमारे ऋषि हुए हैं, और साथ साथ में ऐसे ऐसे बहुत से पशु भी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जो गहरी सांसें लेते हैं और हजारों लाखों वर्षों तक जीवित रहते हैं। उनके ऊपर में किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जाड़ा गर्मी बरसात का प्रभाव उनके ऊपर में नहीं पड़ता है। अगर हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे इनसाइड बॉडी में रोम रोम तक उन सारी चीजों का, सारे विकार अपने आप स्वतः दूर होते चले जाते हैं। और एक चीज और भी मैंने देखा है कि बहुत से योगाचार्यों से मिलने का, बैठ करके उनके साथ सत्संग करने का भी सौभाग्य मुझे मिला। बाबा रामदेव, जिस समय बाबा रामदेव नहीं हुए थे, उस समय हरिद्वार में एक युवा सन्यासी के रूप में उनकी मैंने वो बेचैनी भी देखी है। और साथ साथ में विशेष रूप से उसके बाद में जब इन्होंने योगा का प्रचार और प्रसार के माध्यम से सारे विश्व में एक अलग स्थान बनाया, तो कभी कभी चर्चाएं होने पर मैंने कहा कि अगर इसे साइंटिफिक वे दिया जाए, जैसे कि एक हम आसन करते हैं, वो चाहे प्राणायाम हो, सूर्य नमस्कार हो, या अनुलोम विलोम हो, या जो कपालभाति है, आदि आदि बहुत सारे, मैंने सुबह से लेकर शाम तक हम आसन करना चाहें तो आसनों की कमी नहीं पड़ेगी। और छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के पूर्व 9 महीने तक वो माँ के गर्भ में भी योगासन करता है, और योग का प्रभाव जन्म से लेकर के और मृत्यु तक सिर्फ खाली लाभ ही लाभ देता है। ये मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम एक आसन छोटा सा ही, सांस को हम अगर लेते हैं, गहरी सांस लेकर के, और उसे लेने के बाद में, और जिस तरह हम एक क्रिया करके बता रहे हैं आपको, उसे 8 सेकेंड तक सिर्फ खाली रोकना है। 8 सेकेंड का मतलब हुआ कि उससे ज्यादा नहीं, उसे हम 1001, 1002 करके भी 1008 तक ले जा सकते हैं, या फिर 1001, 1001 से लेकर के 1008 तक। तो जैसे हमने गहरी सांस ली और लेने के बाद इसे हमने लॉक कर दिया, और मन में हमने काउंटिंग की 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, और फिर उसके बाद में उस सांस को नॉर्मल रूटीन में बाहर निकालते हुए 2-3 गहरी सांसें ली, और गहरी सांस लेने के बाद में फिर पुनः हमने इस क्रिया को किया। तो 4 बार से ज्यादा नहीं करना है। 1 मिनट में 8 चक्कू 32 सेकेंड में आपकी 4 बार ये प्रक्रियाएं हो गई, और बीच का गैप जो है वो 28 सेकेंड। माने उसमें आप गहरी सांसें लेकर के एक आसन को हम 4 बार करके और अपने को स्वस्थ बना के रख सकते हैं। या फिर जिस क्षण हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उसमें नासिका के दोनों छिद्रों से अगर हमें समान प्राणवायु आते और जाते मिलती है, तो इसका मतलब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सानंद हैं, परमानंद हैं। और अगर एक साइड का छिद्र बंद है, तो इसका मतलब कि 50% हम परफेक्ट हैं और 50% परफेक्ट नहीं है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि हम जब कोई भी योगासन करें, उसमें भुजंगासन अगर हम करते हैं, तो उसमें जो हमारे पीठ की
मैंने मेरुदंड कह लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड कह लीजिए, कभी भी कंधे से लेकर के, गले से लेकर के और जो हमारा आधार स्तंभ है वहां तक कभी भी कोई दर्द नहीं होगा। ये भुजंगासन की सबसे बड़ी विशेषता है। और उसे भी हमें सिर्फ खाली 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, 8-8 सेकंड जो मैंने बताया। तो ये करके भी आप जो है लाभान्वित हो सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, जहां पर भी आप चलते चलते भी कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति जिस नेचर ऑफ जॉब से जुड़ा हुआ है, जो उसकी कार्यशैली है जीवन में, उस जीवन में जीते हुए अपने लिए वो 2 या 3 योगासन का चुनाव करके और आजीवन पर्यंत इसका लाभ उसे, क्योंकि 25, 30 और 40 वर्ष तक तो वैसे भी व्यक्ति ऊर्जावान होता है, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छे, जैसे लोग बोलते हैं कि गुड हैबिट, बैड हैबिट, अगर हमने कुछ अच्छी आदतों का समावेश कर लिया तो इसका लाभ हमें मिलना शुरू होता है 45 वर्ष के बाद से लेकर के और अंतिम क्षण तक। हम जो है स्वस्थ रहते हैं, सानंद रहते हैं और दूसरों के हित में, परमार्थ के हित में संपूर्ण जीवन कार्य करते रहते हैं। मेरा बाबा नागपाल, मां आनंदमयी, मदर टेरेसा और बहुत से युग के संतों के साथ में समय गुजारने का सौभाग्य मिला। शिक्षा दीक्षा मेरी ऋषि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में संपन्न हुई। और इन सब के बावजूद संपूर्ण जीवन मैंने सारे विश्व का भ्रमण करते हुए, और भारतीय, हमारा भारतवर्ष जो है ये सभी चीजों की जननी है। मैंने गौरवशाली अतीत से लेकर स्वर्णिम भविष्य की ओर सकारात्मक बिहार, रचनात्मक बिहार, सकारात्मक भारत, रचनात्मक भारत, और तभी हम राष्ट्र के नव निर्माण एवं समाज के समग्र विकास में युवा शक्ति का सही सदुपयोग करते हुए और उनका उचित सम्मान करते हुए मुख्य धारा से जोड़ करके हम लोग जो हैं आत्मनिर्भर हो सकते हैं, स्वावलंबी हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं और संपूर्ण विश्व को नई दिशाएं देने में भी हम सक्षम हो सकते हैं। कला के माध्यम से जिन बच्चों ने अपने विशिष्ट शैली प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि हर बच्चे का चित्र इतना सुंदर और प्रभावशाली रहा है कि उन सभी चित्रों को विशेष रूप से हमारा एएनएस कॉलेज बाढ़ ये तो पुरस्कार दे ही रहा है और विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं सभी लोग। लेकिन हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, जो पिछले 40-45 वर्षों से राष्ट्र के नव निर्माण एवं समाज के समग्र विकास में बाल शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति को शिक्षित, संगठित कर, संघर्षशील बना करके, और पूरे देश भर में इसमें करोड़ों, कई कोटि इसके मेंबर्स हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो व्यक्ति इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स के कार्यक्रम में जुड़ जाता है वो उसका स्वतः मेंबर बन जाता है। उसके लिए मेंबरशिप का कोई चार्ज नहीं है, कोई वो नहीं है। और राष्ट्रपति भवन में 1993 में तत्कालीन महामहिम शिक्षाविद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के विशेष अनुरोध पे प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न, भारत में भारत रत्न तो आपको हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन देश रत्न पूरे देश भर में सिर्फ एक ही है, वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिनकी सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, और इसके साथ साथ इतने महानतम व्यक्तित्व हुए कि गांधी जी और सभी लोग उनसे प्रभावित रहते थे और गांधी जी को कदम कदम पे साथ उन्होंने दिया और हर जगह पे तन मन धन से उनके प्रति समर्पित रहे। पराधीन भारत को स्वाधीन भारत बनाने की दिशा से लेकर के और पूरे विश्व में उसकी अग्रणी भूमिका निभाने तक उन्होंने निर्वाह किया। तो वो जब मूर्ति वहां पे लगी अष्ट धातु की 30 दिसंबर 1993 में, तो शंकर दयाल शर्मा जी ने बोला था कि आपने राजेंद्र प्रसाद जी की ही मूर्ति क्यों बनाई? तो मैंने कहा कि छात्र जीवन में मैंने बहुत से लोगों की मूर्तियां बनाई जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति की मूर्ति बनाने के पीछे कारण ये था कि इनकी सादगी और इनकी सरलता और विद्वता को मैं अपने जीवन में आत्मसात कर सकूं। इसलिए हर क्षण, हर पल, हर समय इनके एक्सप्रेशंस
इनकी व्यवहार कुशलता लगा कि हमारे अपने परिवार के दादाजी हैं और वो इस प्रकार से आशीर्वाद दिया करते थे। तो वो मैंने उसका निर्माण किया। तो उन्होंने खड़े होकर के, मैंने हाथ उनके थरथरा रहे थे, उन्होंने गले से लगाया और लगाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं भी राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, प्रशंसक हूँ और उन्हीं के जीवन आदर्शों को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है। तो मैंने एक चीज और मैंने बोला कि गांधी टोपी जो है देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तक ही सीमित रहेगी। आपके जाने के बाद राष्ट्रपति भवन से गांधी टोपी हमेशा के लिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत से राष्ट्रपति महामहिम जो हुए वो उसका उपयोग भी नहीं करते हैं, और कभी ज्यादा कदा 26 जनवरी या 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे अगर कुछ उन्हें अपना संदेश देना हुआ तो उसमें भले सम्मान देते, नहीं तो अब उसकी विदाई हो चुकी है आज। लेकिन हमारे पूर्वजों के संस्कार वो हमारे अंदर में जो हमें स्थान देते हैं, महत्व प्रदान करते हैं एवं हमें यशस्वी बनाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या अगर मैंने ग्रहण की और अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं आई तो कहीं ना कहीं मेरी स्वयं की गलती है, जिसकी वजह से मेरे अंदर में यह तत्व नहीं आ सका। लेकिन अगर हमने सही संदर्भों में गुरुजनों के चरणों में ध्यान करके और उनके जीवन चरित्र को आत्मसात करते हुए अगर हम उनसे कुछ नहीं भी पूछेंगे तो भी क्लास में वो इतना सब कुछ बता देते हैं कि मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हर जिज्ञासु छात्र अपने शिक्षकों से उनके जीवन आदर्शों के प्रति सम्मान देते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे खुद अपने गुरुजन जो राम किंकर वैस संथाली थे और उन्होंने विशेष रूप से इंदिरा गांधी और सभी लोगों को उन्होंने पढ़ाया था। तो सभी लोगों का पुनः मैं एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन सभी लोगों ने जो मुझे आमंत्रित किया, ये सौभाग्य मुझे दिया। और कभी भी आपके विद्यालय में जब भी कभी आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो वहां पर तनाव मुक्त प्रबंधन के ऊपर में और खास तौर से बच्चों के लिए विशेष रूप से उन्हें कुछ अच्छे टिप्स हम दे सकेंगे और उसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि उन छात्रों से कि आप छात्र नहीं, मेरे विद्यालय के नक्षत्र हैं, महाविद्यालय के नक्षत्र हैं, और आपकी प्रतिभा के द्वारा हमारा महाविद्यालय विश्व के मानचित्र पे गरिमा स्थापित करेगा, तो उस बच्चे के अंदर लगता है कि नहीं, हम हमारे अंदर में सोई शक्ति को सर ने जगा दिया है और एग्जाम नहीं बेटर देन एग्जामिनर। अगर यही छात्र ये फील करें कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस संस्थान में जाते हैं उस संस्था को गौरव प्रदान करते हैं, जिस विधा में जाते हैं उस विधा को समृद्धशाली बनाते हैं, तो इससे बड़ा और क्या होगा। और उसमें विशेष रूप से हमारे उस शिक्षक वो महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक नहीं होते तो सभ्यताएं नहीं होती, इतिहास नहीं लिखा जाता। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसके पिछले 72 जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं वही व्यक्ति शिक्षक बनता है। शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों में भी दिशाएं बदलते हुए और सकारात्मक सोच के साथ में, सकारात्मक प्रयास के साथ, सकारात्मक दृष्टि के साथ में हमारे युवा शक्ति को दिशा निर्देश करता है। और अब मैं 3 जो प्रत्याशी हैं सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया। लेकिन इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय सुश्री प्रियंका सुरेंद्रनाथ कॉलेज ये प्रथम हुई हैं। द्वितीय सुश्री जसवीर जी AIJSM कॉलेज रोहतक, और एक तीसरी बच्ची प्रिया सिमरन करके वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। तो इन तीनों बच्चों ने प्रतियोगिता में एक विशिष्ट स्थान पाया है। इन्होंने टू द पॉइंट जो विषय दिया गया था उसके साथ में और साथ साथ में कलर कंपोजिशन जो इन्होंने किया और विषय की प्रस्तुति जो इन्होंने किया है वो सर्वश्रेष्ठ है। और बाकी सारे बच्चे भी, इन सबकी कलाकृतियां सर्वश्रेष्ठ हैं। और इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स के द्वारा भी हम उन सभी बच्चों को मेडल और साथ साथ में एक सर्टिफिकेट ये प्राचार्य महोदय को पहुंचा देंगे और उसके बाद में आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ में पुनः यशस्वी प्राचार्य
डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद राय जी, कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार झा जी, डॉक्टर हिना रानी जी, डॉक्टर विपिन नौटियाल जी, डॉक्टर ज्योतिमाला जी, और जिन नाम को हम नहीं भी जानते हैं उन सभी पूरे परिवार को अब पुनः हम उनका सम्मान करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि आपने इस परिवार से मुझे जोड़ा, सम्मान दिया, और विशेष रूप से हम आपके आभारी हैं। आपको पुनः एक बार कोटिशय नमन, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सर। हेलो, धन्यवाद। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? होगी पुनः एक बार। यस सर। हिना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो। बोलिए सर आप। मेरा नाम का नाम सुभाजम बोल दे। आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड। अब मैं डॉक्टर विनोद झा सर को बुलाना चाहूंगी कि आप आएं और थोड़ा सा हमारे बच्चों को और इस प्रोग्राम के बारे में बताएं। गुड आफ्टरनून सभी को। ये प्रोग्राम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 को ही होना था, बट ड्यू टू सर्टेन अनफॉर्चुनेट circumstances and certain technical reasons that were of course beyond our control, we could not make it on 21st. So in consultation with our beloved principal, we have decided to postpone it to 24th. I am really thankful to my principal here, क्योंकि जब भी मैं कुछ भी उनके पास लेके जाता हूँ, he always say yes, झा जी आगे बढ़िए. But I really consider myself very fortunate for having such a principal and such a team. Second thing, ये जो टॉपिक है ये पेंटिंग का, और जो टॉपिक सर ने लिया था सत्यम शिवम सुंदरम का, आई एम नॉट कम्पिटेंट एनफ, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ कम्पिटेंट एनफ टू से एनीथिंग. मैं थोड़ा बहुत भी जो सीख पाया हूँ सर वाजपेयी सर का ही जो अभी सुना 10 मिनट 15 मिनट के जो उनकी बातें सुनी, उसके बाद ही मुझे लगा कि मैं कुछ जान पाया हूँ इन सब्जेक्ट के ऊपर. एंड आई एम रियली फोर्स्ड टू से यू sir, I have had in my living memory only two, initially only one Bajpayee, that was Atal Bihari Bajpayee, and now I am adding one, that is Pandit K.S. Bajpayee. From now onwards, it was really very nice, very memorable to hear you. One thing more, sir, चूंकि ये मेरी शिक्षा दीक्षा का मैं अभाव ही कहूँगा, क्योंकि इसके पहले जो मैं ये समझता था कि ये जितने भी आर्ट कल्चर, जितने भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो हमारे आर्ट से और हमारे पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट करते हैं, ऑल दीज वेर रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर इकोनॉमिक कंडीशन. लेकिन आपको सुनने के बाद ये लगा कि नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे ये एग्जिस्ट करती हैं, इनका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, एज अल्थुसर सेज अर्लियर. इसलिए इनका जो एक रिलेटिव ऑटोनॉमी होता है वो भी आपकी बातों को सुन के लगा. तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड ऑल द टीम मेंबर, बिकॉज मुझे आपके बारे में कोई आइडिया नहीं था. उन लोगों ने ही सजेस्ट किया था कि सर को बुलाया जाए. इट वाज रियली, मैंने जो आपका जो डिलीवरी था, आपका जो स्पीच था, it was really illuminating, and I'm really thanks to you sir. Thank you sir, thank you. अब मेरे IDC के कन्वेनर हैं, उनका इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा पकड़ भी ज्यादा है. I think he will be the better person than me to say something on this topic. Thank you. Binay ji, now it's your turn. Binay ji, unmute yourself. Binay ji को unmute करो. बिपिन, विनय जी अपने Yes, sir, unmute yourself. हाँ, Hello. बोलिए. Hello. Yes, sir, and, you are audible. You are audible. Yes, sir, please continue. continue. yeah. First of all, good morning to all of you.
and hope you all are well, safe and sound. सबसे पहले मैं अपने आज हेलो am I audible? हेलो एकदम yes, सुनाई पड़ रहा है, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक, ओके। सबसे पहले मैं आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि जूरी के रूप में आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर कृष्ण वाजपेयी जी, जो क्रिएटिव आर्ट बीआईटी मिथिला में हेड हैं डिपार्टमेंट में। मैं उन्हें नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, और खास करके आज जो इस विधा पर योग पर उन्होंने जो योग के विविध आयामों का उन्होंने जो वर्णन किया है, खास करके उसके टेक्निकल पक्ष, तकनीकी पक्ष को जो उन्होंने कैसे लेना चाहिए, कितने बार सांस लेना चाहिए, तब ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इस पर जो उन्होंने व्याख्यान दिया है वो वस्तुतः सारगर्भित है, वह वस्तुतः हम सबों के लिए अपने जीवन में उसे उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। जहां तक हम जानते हैं योग, ये आज जो खास करके इसके साथ साथ मैं आज के जो ये जो वेबिनार ये या जो ये प्रोग्राम के ये जो पेंटिंग प्रोग्राम, पोस्टर प्रोग्राम था, उसके जो ऑर्गेनाइजर हैं हमारे फिलॉसफी डिपार्टमेंट के जितने भी हैं, खास करके उसके को कोऑर्डिनेटर हिना जी, बिपिन नौटियाल जी, डेप्टी कोऑर्डिनेटर ज्योतिमाला, उन्होंने जो इस थीम को लिया है, आजकल जो हम लोग जिस परिस्थिति में, जिस पैंडेमिक में, जिस त्रासदी में जी रहे हैं, उस त्रासदी में उन्होंने इस थीम को जो लिया है, शायद लगता है दैट इज वेरी क्रिएटिव। यही क्रिएटिव है, यही रचनात्मक पहलू है हमारे जीवन का, कि हम इस पहलू में भी, इस अवसाद के समय में भी अपने जीवन को दुरुस्त रखें, तंदुरुस्त रखें, और उसके लिए जो आधार है योग और चित्रकला, उसको हम प्रभावी रूप से अपने जीवन में अपनावें। तो इसके लिए वो सबसे पहले ये लोग थैंकफुल है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूं अपने इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं हमारे प्राचार्य महोदय इंजित प्रसाद राय जी, जो हर बात पे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, कुछ नया कीजिए, कुछ नया कीजिए। और उस नया करने में जो सबसे व्यक्ति मोटिवेटर के रूप में सामने हमारे आते हैं IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद कुमार झा जी, मैं उन सबों का आभारी हूं कि उन्होंने आज मुझे इस पहलू पे अपनी बातें कुछ रखने को प्रेरित किया कि मैं कुछ रखूं। मैं उन सबों का आभारी हूं। जहां तक दोस्तों योग की बात है, मैं इतिहास का अध्येता हूं, विद्यार्थी हूं। ये जो 3 चीजें रखी गई है, इसमें आज का जो विषय वस्तु है वो 3 चीजों से समाहित है, योग, चित्रकला और महामारी। ये तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, और खास करके इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए ये तीनों चीज भी एक टूल्स की तरह काम आता है हमारे इतिहास अध्ययन में। योग जहां तक कहा गया है कि योग जो है वो संस्कृत शब्द युज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है स्वयं के साथ मिलन, स्वयं का आत्म परीक्षण, स्वयं को जानना, स्वयं में हमारी जो कैपेबिलिटी है उसको पहचानना। ये युज शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ है। पतंजलि जो कहा जाता है योग को एक विधा के रूप में देने का जो जिन्होंने काम किया है पतंजलि, वो भी कहते हैं योग का अर्थ होता है मन को नियंत्रण में रखना। दोस्तों योग के कई शैली हैं, आजकल हमें देखने पर चैनल कई शैली है योग के, लेकिन योग के विभिन्न शैली के होते हुए भी उसका मूल विचार और मूल ध्येय जो है वो है मन को नियंत्रित करना। निश्चय रूप से योग ऐसी विधा है जो हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच एक सीधा संबंध स्थापित करता है। यही वो विधा है जब हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे शरीर में जो कार्यशीलता है उसमें एक तारतम्य उपस्थित करता है, एक संतुलन पैदा करता है, और जिससे हम अपने जीवन पथ पर बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी व्यवधान के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो योग हमारे ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक टूल्स, एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि जब हमारी सभ्यता का अभ्युदय माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। जब सभ्यता हमारे भारत में जो पहली सभ्यता जो शुरुआत हुई वो था सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन आज भी हम उसके जो
क्योंकि उसकी जो लिपि है उसको मैं जान नहीं पाया हूँ, पढ़ नहीं पाया हूँ, तो आज भी उसकी जानकारी हमारे इन 2 चीजों पे ही अवलंबित है, वो है चित्रकला। वहाँ की जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक लिपि है, चित्रलिपि है। उसको जान करके आधार पे हम योग के बारे में या उस समय के लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसमें मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है। उस एक मुद्रा में एक योगी के रूप में आकृति है, और कहा जाता है, और हमारी मैथोलॉजी में कहा जाता है कि शिव जो है हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो योग के प्रथम गुरु विश्व में शिव हैं। तो इस आधार पर उस मुद्रा में जो चित्र अंकित है योग का, तो हम कहते हैं कि सिंधु घाटी वासी जो है निश्चित रूप से शिव की आराधना करते थे, उनके आराध्य देव शिव थे। योग एक हमारे टूल्स के रूप में, एक साधन के रूप में हमारे पास सामने आता है, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जहां तक दोस्तों चित्रकला का सवाल है, तो चित्रकला निश्चित रूप से हमारे मानव के सभ्यता के शुरू होने से पहले से हमारे जीवन में है। हमारे प्रागैतिहासिक काल से ही, जब हम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हम सिर्फ घुमंतु जीवन रहते थे, जंगलों में जीवन व्यतीत करते थे, उस समय से ही चित्रकला हमारे जीवन में आया हुआ है, उद्भूत हुआ है। और इसका ज्वलंत उदाहरण हमें मिलता है जब हम कहते हैं कि भारत में लोगों का निवास करना कब से शुरू हुआ, उसका एकमात्र टूल्स हमारे पास है चित्रकला, जो भीमबेटका में है, जो आज से 10,000 वर्ष पहले की बातें करता है कि मानव ने आम लोगों की तरह जीवन यापन करना शुरू हुआ। तो दोस्तों योग की तरह ही चित्रकला भी हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अपने जीवन को समझने लिए, अपने पुरानी पीढ़ियों को समझने के लिए, और अपने आगे के जीवन को नई और नई ऊर्जा के साथ अग्रसर होने के लिए। ये दोनों चीजें जो है हमारे पास एक अक्षम अवधि है, निधय है, साधन है। तीसरी बात हमारी आती है महामारी, जिस त्रासदी को हम लोग आज झेल रहे हैं। महामारी सचमुच में विकट स्थिति है, लोगों के जीवन का क्षय करता है, लेकिन यही महामारी हमें क्रिएटिविटी बनने के लिए भी मोटिवेट करता है, हमें ऊर्जा देती है। आज ये महामारी नहीं आती तो हमें, मुझे लगता है, वाजपेयी सर से मुलाकात नहीं होती। तो हमने तो ये मौका दिया है महामारी ने, हम इस महामारी को भी रचनात्मक रूप से हम ले सकते हैं अपने जीवन में, और इस रचनात्मकता का जो आयाम होगा वो होगा योग। आप अपने घर में बैठ करके इस महामारी का उपयोग आप चित्रकला के रूप में करें, पेंटिंग के रूप में करें, योग के रूप में करें, ताकि आपके जीवन का संवर्धन हो, विकास हो। आप एक नई ऊर्जा के साथ, जब ये कोविड की त्रासदी खत्म होगी तो आप में एक नई ऊर्जा होगी, एक नया विकास होगा, एक नई विवेचना होगी, एक नए आयाम होगा, एक नई बौद्धिक संरचना होगी, जिसके आधार पर अपने जीवन को आप दुरुस्त कर सकते हैं, पुष्पित कर सकते हैं, पल्लवित कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महान भावों का एक बार सादर नमन करते हुए, ये मैं सबसे पहले सब करते हुए मैं सभी को, आयोजकों को, फिलॉसफी डिपार्टमेंट को, अपने प्राचार्य महोदय को, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं IQAC के साथ, इस विधा से, इस प्रोग्राम से जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी व्यक्ति है, मैं उन सबों को एक बार फिर अपनी आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से हमारे जो विश्व अतिथि है केसी वाजपेयी जी, जिन्होंने योग के बारे में जो अभिज्ञता दी, मैं उन्हें फिर से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर योर वर्ड। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाउ एक्चुअली डॉक्टर हीना रानी एंड डॉक्टर ज्योति माला इज द real person whose hard work is behind this whole program. That's why I'm inviting Jyoti Mala ji to say some word. Jyoti ji, Please hello. excuse me. Jyoti ji, Just one sec. Please. One sec. हाँ yes sir, Sorry. yes sir. Sorry, I am gate crashing. ठीक है, मैं विदाउट टर्न बोलने जा रहा हूँ. Sorry, but I will take only 15 seconds. एक चीज बता देता हूँ, जैसा मैंने कहा था कि हमारे IDC के कन्वेनर है, वो ज्यादा इसमें कॉम्पिटेंट है बोलने के लिए. एक चीज और बोलूंगा, चूंकि रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड, और उसमें ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो थर्ड जो प्राइज विनर कैंडिडेट है वो इनकी बच्ची है. सो गिव हिम ए बिग हैंड, विनय जी को. विनय जी की बच्ची ही थर्ड विनर है. थैंक यू विनय जी.
प्लीज ज्योति कंटिन्यू। ओके सर। सर ज्योति जी, हाँ हाँ जी, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं केसी वाजपेयी सर को धन्यवाद देती हूँ। सर ने बहुत ही यूनिक तरीके से जो हमें योग के नए आयामों को बताया, उससे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुए होंगे। और मैंने दर्शन शास्त्र की छात्रा रही हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दर्शन शास्त्र में। तो वहाँ पर भी हम लोग माइंड बॉडी मतलब मेंटल और साइकोलॉजिकल की जो ड्वेलिज्म है, जो द्वैतता है, वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहता है। तो सर आपने उस जटिल चीज को इतने सरल शब्दों में बताया, और बताया ही नहीं, योग के आयामों और आसनों के द्वारा सुझाव भी दिया। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन करके। और आपने साथ ही गुरु महिमा पर भी चर्चा किया। और आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, पीजी के या ग्रेजुएशन के या स्कूल के भी हैं, तो वो सारे इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस। उसके बाद मैं कहना जो 3 विनर हैं, पहले विनर प्रियंका जो कोलकाता की हैं, दूसरे हरियाणा से जसबीर, और तीसरी राजस्थान की जो विनय सर की बेटी हैं श्रेया सिमरन। तीनों को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। राजस्थान की नहीं है, बिहार की है। वो बोलो कि अभी फिलहाल राजस्थान में है, ऐसा हाँ, मत करो, राजस्थान उनका बाप वहाँ बैठा हुआ है। वो वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा है, लेकिन वो रहती पटना में है। वन थिंग ज्योति, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर हमारे तीनों विनर अगर जुड़े हुए हैं जूम पे, तो वी विल फील वेरी डिलाइटेड कि अगर उनका हम शक्ल देख पाए। वो हमारी कौन तीन बेटे बेटियां हैं। सर वी विल चेक एंड विल डेफिनेटली डू इफ दे आर अवेलेबल। ठीक है, तब तक तुम अपना माइक दूसरे को बढ़ा दो, तुम चेक करो। हाँ जी सर, जी सर। Yes, sir. Now I am sharing the winners photo and the poster made by them. Good, good. I am good. I am sharing. Wait a minute. हाँ भाई। I start from the third to first. It is the sequence, and you can see. नाम भी बोलते जाओ विनर का। Okay. Yes. She is Freya Simran, a daughter of our winner sir, and it is her ID. This is her photo making the poster, and third one is the poster made by her. You can see. I think it is clear sharing. It is project on the Zoom. शेयर नहीं हो रहा है। हेलो जी, इसको जूम करना है। This is the poster by Freya Simran, and this is her photo. Okay. Now I am going to project our second winner. The photo by his name is Jasbir from Rohtak. जी, वो दिख नहीं रहा है, वो शेयर नहीं हो रहा है। शेयर हो रहा है, मुझे दिख रहा है, पर हम लोगों को okay. And this is the, आप लोगों को दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तुम बार-बार म्यूट क्यों कर देते हो? No sir, somebody is complaining that it is not seen on the screen. That's why I am conferring from you. Okay, now अभी नहीं आ रहा है, अभी ज्योति आ रही है। Yeah, दो okay, बार। sir. और सुनो,
थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाओ। ओके 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 और सर। केवल नाम हाँ। ही मत बोलो, उसका स्कूल या कॉलेज जो भी है जिससे भी अटैच्ड है उसके बारे में जी भी सर। बोलो। Now I am again starting. This is our third prize winner. Her name is Freya Simran. She is studying in Banasthali Vidyapeeth University in Rajasthan. A daughter of our winner, sir. It is her photo making the poster. I am going to zoom in. And the poster by her. This is the जो हमको जो केसी सर द्वारा डिसाइड किया गया है, ये थर्ड विनर है हमारी, ये पोस्टर थर्ड विनर है। यू कैन सी इट। मैं इसको जूम करता हूँ। A beautiful poster. A multiple benefit by yoga. Keep calm, stay at home and practice yoga. Yoga gives me superpower, an inherent power, a power hidden in human being. Beautifully shown by her. Now our second prize winner. It is Jasveer, son of Shri Narendra Kumar ji. Jasveer from Rohtak, All India Jat Hero Memorial College, Rohtak. Jasveer, इनको सेकंड प्राइज मिला है। ये रॉ पोस्टर मेकिंग के दौरान का इट्स अ रॉ फॉर्म, a basic structure of our poster. Now it is the full-fledged poster. Beautifully draw. The outlining and the sketch pattern you can see. I think it is a crane color is used, I think, as per my knowledge, and beautifully colored is the selection of color and the way of sketching. And all the chakras is shown by him. I think there are 7 chakra. There should be 7 chakra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Beautifully drawn, and it is a second prize winner. Now I am going to display our first prize winner. It is her photo making the poster. This is her ID card. Her name is Priyanka Shadhu Khan. Priyanka Shadhu Khan, I think. Sorry for the wrong pronunciation. And she is from Surendranath College. Her other name is Kesab Chandra Sadhu Khan, and she is from Barakpur, Kolkata. And she is our first prize winner. Her poster is this: Yoga in Indian culture. Very good. You can see, and many Zoom it. forms, many. Sir, हो रहा है sir. Very good. Very good. You can see many things is covered in the single poster. Yoga in Indian culture. I'm going to read out. इस पोस्टर में जो भी लिखा है मैं उसको रीड करता हूँ. And there are several posters is also there. You can see here, Wind Mudras, and
carving within nature. It is so that we are sitting in the lap of our nature. Also, our country also. Vibhin Mudras, I think it is one of the posture of Surya Namaskar and International Yoga Day. And it is also a symbol of yoga. The roots which are in the earth, the main man, nutrition can gain from here. And this so you are flying in the infinite sky. I'm going to read out yoga. Yoga is associated with the culture and heritage of India, and I think we have not going to pronounce yoga. It's not better good to being an Indian to speak yoga. As it is now we can say in our society is generally spoken by everybody that yoga YOGA. It must be pronounced yoga. Being an Indian, we must follow this practice. So I'm going to speak yoga. Yoga is associated with the culture and heritage of India. In Sanskrit, yoga means to unite and describe a way to be a healthy life. In yoga, the mind is disciplined through meditation and the body is aligned and strengthened. It is believed that yoga originally originated in India. Originally originated in India about 5,000 years ago. The birth of yoga and consequently mental happiness is from Rig Vedic period. Yes, yet people fails to manifest in their daily lives. Indian culture and tradition has always been on the top of the table and has been inspiring a lot of countries to indulge in yoga practice. Yoga and spirituality are two traditional yet significant processes that can be wonders of practice sincerely. It is International Yoga Day on 21st June. The roots of mental happiness grows out to be Don't stress your eyes too much. ये पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा एक्चुअली तो गलत छोड़ पढ़ने से दो। अच्छा है कि मैं इसको ना पढ़ूं द रूट ऑफ मेंटल हैप्पीनेस ग्रोज आउट टू बी द डैश प्लेयर्स ऑफ सोशल इविल द प्लांट ग्रो आउट टू बी tree much likely with time practicing yoga overpowers the negate tribe around us. By Priya Sadhu Khan, Surendranath College, Department of Sociology. This is the whole poster and it is our first winner poster. Okay, I can stop it's screen fine. share. Yeah, sure. Okay. विपिन जी वन सेक हमारे दो फर्स्ट प्राइज विनर और थर्ड प्राइज विनर अवेलेबल हैं तो दिखा दो। उनका हाँ उनका प्रिया screen- को दिखाओ। I am मिलवाओ continuously मिलवाओ asked to Priya Simran to start her video, but I think she no. Okay. Freya, if you are available, please start your video. And second one is and who? same Priyanka. Jasbir. Priyanka Sadhu Khan, you are available now? दिखाओ Priyanka? दिखाओ लोगों मिलवाओ। Okay, Priyanka Our is there. first prize winner Priyanka is there. Priyanka, start your video. And Freya also. Freya and Priyanka are requested to start your videos, please. Okay, I'm going to spotlight Priyanka. And this is Priyanka. कहाँ है प्रियंका? Hari sir. Good. चलो, congratulations. Okay, this is Priyanka, our first prize winner. Very good. Okay, sir. Congratulations, Priyanka. Very good, beta.
Now it is. Now I'm going to spotlight Priya Simran, our third prize winner. She is Priya Simran. Priya, congratulations to you from our college. I'm going to unmute you. Wait a minute. कुछ बोलना चाहते Okay, हो okay. तो बेटा हाँ, बोलो. If you unmute want to say कीजिए. something, please. हाँ. Okay. Thank you for this opportunity because during this time of pandemic, you know, for an artist, the best way to keep their mind sane and to be in the moving path, the best way that we can do is express. And thank you for giving me this opportunity to be able to express. Thank you. Okay. Now once again we go for Priyanka, and if she want to say something, Priyanka. Wait. I think Priyanka, are you there? Okay, if you want to say something, please. I'm going to unmute you. Thank you so much. I'm really glad to being a participant over here. Hello, sir. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah. Sir, thank you so much. बोलो, please continue, Priyanka. Please continue. Continue. How you are feeling? Continue. I'm really feeling so glad to be a part of the notes. ठीक है जी, नहीं पता. अब ये बताओ प्रियंका. हेलो. हाँ सर बोलो. हाँ ये बताओ. Now what you are going to do with the prize money? Just like KVC, कौन बनेगा करोड़पति? इतने पैसे लेके करोगे क्या बेटे? Yes, I will keep the money. I will save it in my bank account. Yeah, exactly. Then you will purchase a plot in Salt Lake, I think. Yeah, yes, sir, sure. I will purchase something from my craft works. Yeah, exactly. So your father must be very happy. Yes, now I'm outside my home. Now I will go to my home and I inform them that I became the first winner. I'm so happy. Really, I'm very happy for this. I will inform my professors of my college. I'm really happy, sir. Thank you so much. Hello. Yeah, exactly. That's very nice to hear you. But why didn't you inform you on your second telephone? You must be having two telephones at the same time. Yes, sir. I will. After this live, I will surely inform them. But first, you should thankful to Mr. KC Bajpai because he is the person who have discovered you. I think first of all, you must say your thanks to. Okay, KC sir, if you want to say something, please unmute yourself. Both of you can talk to each other. Yes, sir. I heard. Yes, I heard all your tips and they were so fantastic. Thank you so much. And to the judge and ma'am, I started. Thank you all of you. Thank you, Priyanka. God bless you. Thank you. Thank you, sir. See you next year. Yes. Again with the first prize, and the next time our prize money will be in tune of around 1 crore rupees. Okay. Okay. There is not there, and I am going to ask KC sir if you want to say some word. KC sir. Sir, Bajpai sir. Sir. Master stroke. If you want to say something. Sir, yes, master stroke from a master. तो दो शब्द और कहना चाहेंगे. जी सर. कि सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब जहाँ सत्य है वहीं शिव है वहीं सुंदर. तो ये तीनों चीजों को अगर हम मिला देते हैं तो एक चमत्कार हो जाता है. और चमत्कार को नमस्कार सिर्फ खाली भारतवर्ष की पृष्ठभूमि में ही होता है.
और हम अपने यशस्वी प्राचार्य महोदय के सम्मानार्थ और अपने ANS कॉलेज के पूरे परिवार के लिए दो दिन कहना चाहेंगे कि कमजोर करों से साथी सरसंधान नहीं होता। अगर हाथ थरथरा रहा होगा तो फिर हम सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, पानी का ग्लास, चाय का प्याला नहीं उठा सकते। तो कमजोर करों से साथी सरसंधान नहीं होता, दुर्बल हाथों से दुश्मन का अवसान नहीं होता। जो रीझ खींच कर बीज गर्द में गहरे गड़ जाते, जो रीझ खींच कर बीज गर्द में गहरे गड़ जाते, वे ही विशाल वट वृक्ष विश्व में उठ जाते। साधनाहीन इंसान कदापि महान नहीं होता, कमजोर करों से साथी सरसंधान नहीं होता, दुर्बलों से दुश्मन नहीं होता। और विशेष रूप से प्राचार्य महोदय के लिए कि जो धारा के संग बहते हैं वे शव माने जाते हैं। गंगोत्री में आप सूखी लकड़ी डाल दें, डेड बॉडी डाल दें, बिना पता पूछे हुए वो सीधे गंगा सागर तक पहुंच जाएगी। माने तट, शरीर, जल, आत्मा, सागर, परमात्मा। तो जो कहते हैं वे शव माने जाते, तो लहर कर चलते हैं वीर सावरकर, शिवाजी, नरेंद्र मोदी और न जाने कितने युग पुरुष जो हुए जिन्होंने राष्ट्र के हित में काम किया है। जो धारा के संग बहते हैं वे शव माने जाते, जो लहर चीर कर चलते हैं वे वीर गिने जाते। जो युग को मोड़ नहीं सकता, यशमान नहीं होता, कमजोर करों से साथी सरसंधान नहीं होता। Thank you, sir. Thank you for your word. Okay. Now okay, sir. Now I'm going to play our video made by Dr. Jyoti Mala. We'll try to play this video on sharing screen. But before this, केसी सर ने इतनी अच्छी लाइनें बोल दी कि मैं भी नहीं रुक पा रहा हूँ। उनकी बातों से मुझे नहीं रुक पा। एक मिनट विपिन, तुम तो पहले से भी नहीं रुक पा रहे हो, अब बोल ही दो, हम समझ रहे थे। नहीं, मैं बस 2 लाइन बोलूंगा। ये पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी की 2 पंक्तियां हैं, उसमें खाली मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कलाकार होना सौभाग्य। वाह 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 वाह। Now I am going to share video made by Dr. Jyoti Mala ji. Wait for a minute. This is the video. All the posters which we have collected and made by Jyoti Mala ji. I am going to play this. I think. विपिन जी सर, कहाँ रहा? आएगा सर। ज्योति माला जी। हाँ, चलाओ वीडियो।
विपिन, This is the video. Yes, sir. हाँ, अब ना आगे का कार्यक्रम। Yes, sir. Okay. First of all, thank you, KC sir, for your effort. कहते हिना को दे दो। हाँ. And Jyotimala ji. Now I am hand over this session to our HOD, Dr. Hina Rani ji. Hina ji, over to you. Hina ji. आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज ठीक करो। हिना जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है? हेलो, वहीं पर रख के बोलो तुम। बोलिए। हमारा माइक्रोफोन खराब है, वहीं रख के बोलो। Good afternoon to all of you. मैं हीना रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग से एनएस कॉलेज। आवाज थोड़ा ठीक करो। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, हाँ आ रही है। हाँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हीना रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग से अपने एनएस कॉलेज और IQAC की तरफ से बहुत इस अवसर पे बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे प्रोग्राम का धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रजीत राय को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जिनके अनुमति के बिना हम लोग ये पोस्टर कंपटीशन नहीं करा पाते। हमारे प्रधानाचार्य सख्त अनुशासन के साथ साथ हम लोगों के छोटे बड़े आवश्यकताओं और सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके लिए हम लोगों को संस्था या विश्वविद्यालय के लिए काम करने में बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा अपने छोटे बड़े कलीग में किसी भी तरीके का भेद नहीं करते हैं और वो सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जिसके लिए मैं सर के इस आत्मीयता के लिए मैं हमेशा आभारी हूँ और उनसे मैं ये हमेशा प्रेरणा लेती हूँ। मैं अपने IQAC डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर विनोद कुमार झा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसके कोलैबोरेशन के साथ ये सक्सेसफुल नेशनल लेवल पोस्टर कंपटीशन की नींव रखी गई और सफलतापूर्वक इसे इसके परिणाम तक पहुंचाने में सर का जो सहयोग रहा, जो गाइडेंस रहा और जो लीडरशिप के साथ हम लोगों ने ये काम किया, उसके लिए मैं डॉक्टर विनोद सर का भी बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ। मैं अपने जूरी जज प्रोफेसर कृष्णा चंद्र वाजपेयी जी को भी बहुत दिल से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ और उनकी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला और हमारे इस कंपटीशन में अपना समय दिया। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से एक एक बारीकियों को देख करके अपने हमारे सारे पोस्टर्स को देखा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्टर्स बहुत ज्यादा थे और एक एक पोस्टर्स को देखना और देख करके उनकी क्वालिटीज को परखना और परखने के बाद उसका परिणाम को घोषित करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि सर के लिए बहुत ही कठिनाई पूर्वक रही होगी, क्योंकि हमारे पोस्टर आपने वीडियो देखा बहुत ही खूबसूरत थे। लेकिन खैर हमारे जो विनर्स हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बिना उनके हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता। मैं अपने डिपार्टमेंट की कलीग ज्योतिमाला, विपिन नौटियाल, हमारी एक रचना जायसवाल, मैं सभी तीनों का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बिना इनके सहयोग के कारण मैं ये अपने प्रोग्राम नहीं करा पाती। मैंने जब इन लोगों को जो बोला इन लोगों ने किया और करके आज ये हमारा हमारा जो ये फाइनल प्रेजेंटेशन हुआ है, ये इन्हीं लोग के बदौलत हुआ है। स्पेशली हमारे विपिन नौटियाल जी, जो हमारे सारे कोऑर्डिनेटर के बाद भी टेक्निकल कंपनी भी देख रहे हैं, सारा टेक्निकल काम देख रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद। हमारी जो हमारे कॉलेज के IDC कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया और देते हुए हमें
हमेशा आगे बढ़ने की ओर अग्रसर किया कि हाँ आप लोग प्रोग्राम करें और कर करके कॉलेज का नाम आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से उन्होंने अभी योग के बारे में बताया, योग का मतलब ही है जुड़ना। सर ने बताया मानव सभ्यता में किस प्रकार चित्रकला का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है, जिसको उन्होंने बहुत बखूबी बताया, बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से चित्रकला हमारे जीवन शैली को दर्शाता है और बताता है। हमारे केसी सर भी हम लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से यही बताना चाह रहे थे कि योग और चित्रकला ये मानव जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। मैं इन सब के बावजूद हमारे कॉलेज के सारे कर्मियों, सहकर्मियों और शिक्षकेतर कर्मियों सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के ये प्रोग्राम मैं नहीं कर पाती। भले ही लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, लेकिन फिर भी जब जिससे जो सहायता मिलती है वो लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, बाकी पार्टिसिपेंट, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू। अब मैं बताना चाहूंगी कि हम लोगों का एक नया प्रोग्राम फिर आने वाला, हम लोग करने वाले हैं, इंटरनेशनल वेबिनार करने वाले हैं 28 तारीख को, जिसकी सारी डिटेल हमें अभी विपिन नौटियाल जी हम लोगों को देंगे। विपिन नौटियाल जी, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू। स्क्रीन शेयर करके दिखा दो पोस्टर। हाँ जी, तो हम लोग का एक इंटरनेशनल वेबिनार झा सर के गाइडेंस में 28 जून को प्रस्तावित है। मैं आपको उसका जो ब्रोशर है उसको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा बता भी देना स्पीकर के बारे में भी। जी ठीक है, शेयर करके बता दो सबको। हमारा जो ये इंटरनेशनल वेबिनार होने वाला है उसकी टॉपिक है कॉपिंग विद हायर एजुकेशन रिसर्च एंड एम्प्लॉयबिलिटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पैंडेमिक। ये हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग जूम ऐप पर ही करेंगे और 28 तारीख को करेंगे। और इसका सारा डिटेल सब विपिन जी आप दीजिए। विपिन जी, this is our ongoing international webinar which has to be expected on 28 June 2020. Time is 12:30 p.m. to 2:30 p.m. Our webinar topic is coping with higher education, research and employability during and after the pandemic. Organized by Internal Quality Assurance Cell IQAC of ANS College in collaboration with Ottersman Institute London. The main theme of this webinar is higher education, research and job. Higher education, a discussion of how to learn and unlearn to cope with changing HE requirements. Research, a discussion on how to collaborate and form research topics in the new normal. Jobs, a discussion on how to gain employment in a COVID-19 devastated economy. Our key speakers are Dev Aditya, Dr. Paul D. Ottermans, and Gerard Jensen. Dev Aditya, International Award winning social activist, entrepreneur, and educationalist from UK, who has worked on several community projects, including with UK Prime Minister Boris Johnson and his last year winner of the International POV Award at the House of Lords. He has previously been a Senate and Council member of a UK university and Vice President of a Student Center charity. About Dr. Paul D. Ottermans, Principal and Chairman of Ottermans Institute and Deputy Chair of the Board of Trustees GU at Cambridge University. She is an education academic at Brunel University, London, and formerly at University of East London, Donders Institute in the Netherlands, and University of Basel in Switzerland. She was the chair of the Board of Trustees of Brunel SU and University Council member. About Gerard Jensen, Gerard is a seasoned researcher at Brunel University, London, with research experience in teaching training. Prior to his work in the UK, Gerard was involved with academia in the Netherlands on employability and in renewable energy. He is currently also the CPO of Solar Botanic, a sustainable energy fuel source company. Our patron is Honorable Vice Chancellor Professor G.C. Agarwal, Patliputra University, Chairman Professor Indrajit Prasad Roy Sarji, IQAC Coordinator,
Vinod Jha sir, Department of Falls and IDC convener Professor Vinay sir, Department of History, and rest of our all team, our college ANS fraternity. Access your free lesson resource. Website is given in the browser. This is the overview of our upcoming international webinar. Okay, now it's to Hina ji to end this session. Please announce the session end. आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। With the permission of the chair. हाँ, केसी सर कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे प्रोग्राम हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, इस पे सभी को धन्यवाद ज्ञापन हो चुका है। सबने अपने अपने स्तर से बहुत अच्छे से सभी को एक दूसरे को हम लोगों ने धन्यवाद किया, क्योंकि बिना कॉपरेशन के ये काम हो ही नहीं सकता है। और अभी ये जो समय है, इसमें तो हेल्प के बिना कोई काम ही नहीं होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन सारा कुछ हम लोगों का भी ऑनलाइन हो गया है। तो थैंक यू टू ऑल, और इसी तरीके से आप लोग सहयोग देते रहें और हम लोग इसी तरीके से प्रोग्राम करते रहें। थैंक यू। ओके सर, some last few words. केसी सर, प्रिंसिपल सर से भी पूछ लो, कुछ कहना चाहते हैं। प्रिंसिपल सर को अनम्यूट कीजिए। आफ्टर केसी सर। I think principal sir is not there. No, I think principal sir is out of the box. Okay. हमारे नैक कोऑर्डिनेटर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अमर सर हैं। अमर सर, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज। अमर सर। हाँ, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, चूंकि अभी तक वो लापता थे, इसलिए उनको भी सुन लिया जाए। में प्लीज अमर सर। कहाँ है अमर जी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शो योर वीडियो। अमर हो कहाँ? अमर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ, शक्ल दिखाओ अमर। शो मी योर फेस। शक्ल दिखाओ अमर। हाँ, now here comes the Hello. हाँ बोलो। Hello. अमर जी बोलिए। Sir, very good afternoon. If possible, please on your video. You are. हाँ बोलो अमर, प्लीज कैरी ऑन। ऑन है भाई मेरा। हाँ ऑन है तुम्हारा, बोलो। ओके हाँ। Sir, very good afternoon, Bajpai sir. Amar, your video is off. It was a very wonderful session. On करो video on करो अमर। अमर video on करो। हाँ अब ठीक है, बोलो। हाँ बोलो आप। So it was a really wonderful session, and I congratulate all the winners and the participants that came forward for this national level poster presentation. And it was really heartwarming. I was listening all the speeches given by the respected Bajpai sir. It was really, sir, very kind of you to participate and accept our invitation. And we were really enlightened by your speech, sir. And I look forward for all your again cooperation and participation for our other events also, sir. Thank you very much, sir. Bipin, and I thank please. Yes. Bipin, there is one among audience. I think she is the Professor Hansa Gautam. I think उन्हें जरूर वो, चूंकि मैं उनको देख रहा हूँ, she is one of our loyal audience, so she must be unmuted. Ma'am, please, if you want to say something, we are happy to hear you. I think she is from AM College or Commerce College. Hello, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Very good teamwork, very nice college, ANS College. I got an opportunity to see the teamwork. It is very nice, ANS College Bar. I will always remember. People are so organized, so well planned.
that it goes long way. I like this. Whether you are from AN College or Commerce College. I myself Hansa Gautam, AN College, Patna. Yeah. Last time you have made a ring to me. Yeah, yes. Please give me the entry, Job. Yes, you made me to link here. You made me. Thank you, ma'am. आप AN कॉलेज की रह के ANS कॉलेज की तारीफ कर रही है. It means we have मतलब really achieved something. Yes, sir. Yes. और ये हमारे टीम को जाता है. मैं तो वैसे ही झूठ मूठ के लोग That's why I'm telling the team working here. Yeah. They are nice people. Hina, Jyoti, Vipin, Natyal, and your guidance is of course there. The principal. No. Myself is nothing. These guidance we are nothing. They are very young people and one nice team. Very nice. They are really very talented. I consider myself fortunate for having them, and also having an audience like you, ma'am. And you always give me a call. कि देखो मुझे Zoom में entry दिलवा देना. I'm really thankful to you. Thank you, ma'am. Thank you. Hina also sent the link. Hina and Jyoti always give the link. So it is now easy. And madam, I am expecting you on 28th also. Okay, sir. I will be. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Very nice college. Very good teamwork. Very young enthusiastic teachers have joined there. I will always quote this line anywhere. These people are young. Myself is 57. Anyway. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. And Casey sir, few last. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. And Casey sir, a few last word before ending this session. If you want, we are pleased to hear you. We will. Casey sir, if you want. Yes, sir. We are happy to hear you. If you want to say something, few last word before ending the session. ज्ञान एवं अध्यात्म के क्षेत्र में मेरा ऐसा मानना है कि अनुसंधान के बिना इनोवेशन विदाउट वो सामने नहीं आती है. और इतने सुंदर ढंग से आपने इस संपूर्ण कार्यक्रम को समायोजित और इसे रिप्रेजेंट किया, इसके लिए विशेष रूप से विपिन नौटियाल जी के ये भी हम विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे के प्रति कृतज्ञता. बहुत अच्छे से आपने संचालन किया है और यशस्वी आचार्य को पुनः एक बार सादर नमन करते हुए विनोद झा जी को और सभी पूरे परिवार को, हमारा ANS कॉलेज बाढ़, उस पूरे परिवार को सभी लोगों के प्रति हम अपना से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं पुनः. Okay, thank you, sir, for your appreciation. Now, I'm going to end this session. Thank you to all members, all my college team, Casey sir, coordinator sir, IQAC coordinator sir, HOD ma'am, Hansa ma'am, and IDC convener Vinay sir, and to all my ANS fraternity, ANS team. Thank you to all, and especially all the participants and all the viewers for making this webinar. For making this session or this program so successful. Thank you once again. Okay, I'm now Thank you. going to end this session.